So now students, we are going to see today the concept of ledger posting. Now ledger posting is to be done, just a minute, okay. Ledger posting is the state after recording the transaction for the first time. So what we do is, first stage was a recording of transaction. So we recorded transactions in various format, subsidiary books like purchase book, sales book, purchase return, sales return, cash book, petty cash book, then bills receivable, bills payable, and then journal proper. So we recorded the transaction for the first time. Now transactions are recorded, but how do we find the balance of how much amount we have to pay, how much amount we have to receive? Okay, what are the total electricity expense? What is the salary given? What are the total purchase? For example, I'll give you an example. You prepare purchase book. So you will say, कि sir, purchase book में we would come to know the amount of purchase. Yes, you will come to know the amount of purchase, but you will come to know only the amount of credit purchase. You agree with me? Only the amount of credit purchase, because what we write in total credit purchases. But I want to know the total purchase of my business, which is credit plus cash. So from where I'll get cash purchase? So I'll get cash purchase from cash book. I will I'll get cash purchase from cash book. Now cash book, हर एक महीने का we make different cash book for different months. तो क्या हम हर एक महीने के कैश बुक में जा जाके ढूंढेंगे कि कहाँ पे कैश परचेज फिर टोटल करेंगे? नो. So what we do is we go to ledger posting. So the second stage after recording, or the next stage after recording of the transaction, is ledger posting. Now what is ledger posting? In ledger posting, we make various T-shaped account. Now why I call it T-shaped account? You have already made a T-shaped format when we did cash book. Now T-shaped format, you have a debit side, you have a credit side, you have name of account, purchase, and other details as well. When we go to the format, I'll explain it to you. Now हमने हर एक account जहाँ पे we had written A/C, uska we will make a ledger account like this. So there will be so many ledger accounts. Generally ledger accounts are made alphabetically, so that if I want to find the balance of a particular customer, a debtor, so with his name, I will go to that index and see कि ये नाम का राजेश नाम का हमारा कस्टमर से कितना पैसा लेना है. तो I'll go to R, I'll see Rajesh, I'll see page number 78, I'll go to page number 78 जहां पे मुझे उसका राजेश का अकाउंट मिलेगा. तो जनरली लेजर्स आर प्रिपेयर्ड अल्फाबेटिकली. नाउ ये जो लेजर अकाउंट हमने बनाया, उसमें हम करेंगे पोस्टिंग. तो पोस्टिंग करना यानी क्या कि परचेज है, तो परचेज रिलेटेड जो भी इफेक्ट है, जहां पे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट तो नहीं हो सकता, बट हम जब गुड्स विड्रॉ करते फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं, तो हम परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं. तो नॉर्मली परचेज अकाउंट डेबिट, बट परचेज अकाउंट क्रेडिट वैसे नहीं होना चाहिए, बट होता है व्हेन गुड्स गोज आउट फ्रॉम व्हाट वी हैव परचेज. तो परचेज अकाउंट जहां पे इफेक्ट आता है, उसको हम यहाँ पे परचेज अकाउंट में लिखेंगे. डेबिट तो डेबिट साइड, क्रेडिट तो क्रेडिट साइड. वैसे ही कोई एक्सपेंस है
तो एक्सपेंस आ जाएगा डेबिट साइड, कोई इनकम है तो इनकम आ जाएगा क्रेडिट साइड. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन राजेश अकाउंट ये बनाया हमने, तो हम इसको सामान बेचते हैं तो एंट्री क्या आएगा, क्रेडिट पे बेचा तो एंट्री आया राजेश अकाउंट डेबिट. सो डेबिट साइड हम लिखेंगे टू सेल्स. फिर जब वो हमें पैसा देगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे कैश. अगेन बेचा तो सेल्स, अगेन पैसा मिला तो बाय बैंक. ऐसे करते हम राजेश रिलेटेड जितना भी हिसाब है, ध्यान दो, जितना भी उससे कनेक्टेड हिसाब है वो उसके अकाउंट में आएगा. तो परचेज रिलेटेड हिसाब will go to purchase account, sales related sales account, wages related wages account, capital related capital account, drawings related drawing account, salary related salary account, bank related cash related. Now here we may make ledger account if cash book is not prepared. So we will make cash account, we will make bank account, but if cash book is prepared, so already we have cash and bank balance, तो फिर से लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. ये प्रैक्टिकल बोल रहा हूं मैं यहाँ पे. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू मेक कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट also, because the purpose of ledger is to know the balances of various accounts. Now how would I know the balance of Rajesh? तो राजेश रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो सब मैं उसके अकाउंट में लिखता हूं. से फॉर एग्जांपल तुम्हारा कहीं पे अकाउंट चलता है प्रोविजन स्टोर पे, तो वो भी तुम्हारा एक लेजर अकाउंट बनाता है. बैंक में जो तुम्हारा अकाउंट है वो भी एक लेजर अकाउंट है, जहां पे तुम्हारे रिलेटेड, तुम्हारे अकाउंट रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस उधर रिकॉर्ड होते हैं. And that is why when you see the passbook or a bank statement, you will see there is a debit, there is credit, or these days it is written withdrawals, deposits. So this is what is ledger posting. Now first stage record कर दिया, यानी record हो गया. हम second stage पे जाते जहां पे हम करेंगे ledger posting. तो similar अकाउंट रिलेटेड जितने भी इफेक्ट्स है उस अकाउंट में हम उसको रिकॉर्ड करके उस अकाउंट का बैलेंस यानी बाकी बैलेंस फाइंड करेंगे. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ लेजर अकाउंट. ओके, नाउ हाउ डू वी डू लेजर पोस्टिंग. नाउ लेजर पोस्टिंग already you have made the formats, okay, which was given to you, but I'll just show you how we do over here on the white screen, and then we will go to our regular sum. Say for example, purchase account debit 10,000 to Ajay account 10,000. So you have recorded the transaction. Now right now we will be covering journal entry से posting. We are not covering posting from subsidiary books or cash book. Here it is we are doing entry posting from this journal entry. So we make two account, purchase account, I'm just making in rough a T-shaped format, and Ajay account. Debit and credit. Now, how would you do the posting? Now, see, it's very simple. Posting के लिए, here you have to first see purchase account. So you have to locate purchase account की किधर है किधर है किधर है किधर है. तो तुम्हें मिल गया purchase account. तो वहां पे तुम जाओ purchase account पे debit 10,000. So ध्यान दो please. तो पहले debit 10,000 है तो debit side तुम 10,000 लिख दोगे. ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है. इज दिस क्लियर? अब 10,000 लिख दिया डेबिट साइड, ये डेबिट 10,000, यहां पे हम लिखेंगे टू अजय. यू रिमेंबर कैश बुक? कैश बुक में भी हम ऐसा ही करते थे. कैश में डेबिट साइड वी राइट टू सेल्स,
to capital, to name of the person from whom we have received the money, to income. Is this clear? तो ये देख के, ये लेजर अकाउंट देख के हमें क्या पता चलता है? तो हमें ये पता चलता है कि हमने एक डेट पे 10,000 रुपीस का गुड्स अजय नाम के पर्सन से खरीदा. Understood? Now, first step, you see which account, purchase account, go to purchase account, debit, go to debit side and write this amount 10,000. So this 10,000 comes over here. Debit, debit. Now let's go to credit. What happens over here? Ajay account credit side 10,000. So on the credit side we write 10,000 and here अजय अकाउंट में क्रेडिट साइड 10,000 लिखा, पर ये 10,000 क्या है? तो ये 10,000 है परचेजेस. So we write by purchases. So this 10,000 comes over here, which is on the credit side. So now you can see we have given two effects. Purchase account debit, तो डेबिट में चला गया. परचेज अजय अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट में चला गया. समझ में आया कैसे करना है? नाउ हमेशा याद रखना, अगर तुमने यहाँ पे कुछ लिखने में गलती किया ना, ओके, तो अभी भी इतना बड़ा इश्यू नहीं है. पर अगर ये अमाउंट क्रेडिट के बदले डेबिट हो गया तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली होगा नहीं. तो हमेशा पहले साइड कौन सा है वो देख लो, अमाउंट लिख लो, फिर क्या लिखना वो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. समझ में आ गया सबको? We'll do it again when we do the sum. Okay. Now come to the sum. Now we are going to do a textbook sum, that is question number 5, page number 244. Now in exam you will be given journal entries, transaction. You have to make the journal. You have to make the journal entries and then you have to do the ledger posting. But here I have already written the entries so that we can give more time to posting. Okay? Now, सबसे पहले let's understand a ledger account. So let me expand. Okay, as you can see, the name of the account over here is bank account. Okay, heading is ledger of Sri Katara, whatever is the name. Now bank account. Now 8 to 10 lines I have written so that you know how much format is to be made. You don't have to write this in exam. Okay. Now, यहाँ पे you can see there are two sides. One is debit and other is credit. So there are two sides. It's a T-shaped format. Date is a date of transaction. Particulars is where we write to and here we write by. Then JF is journal folio. Now what is this journal folio? Okay, amount JF में बाद में जाते हैं. Amount is the amount of transaction. Now JF क्या है? Let me explain. Many students have been asking me, sir, what is LF and what is JF? Now here, come over here. This entry is written in a book, okay, in a journal book. On some page, say this is on page number 18. This ledger posting we are doing in a ledger book, okay. Now on ledger book, purchase account will be, say for example, on page 20. Ajay account will be on say page 2. Now what happens? तुमने ये एंट्री लिखा, पर ये एंट्री का जब पोस्टिंग किया तो परचेज अकाउंट कौन से पेज पे है इन लेजर बुक? ये है तुम्हारा लेजर बुक. तो यहाँ पे एलएफ का जो कॉलम है वहां पे हम लिखते हैं 20, ताकि हमें पता चले कि ये जो परचेज अकाउंट का लेजर के बुक में पेज नंबर 20 है.
अब यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे JF दिया है, JF यानी जर्नल फोलियो, फोलियो यानी जर्नल का पेज नंबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेज नंबर 18। तो जब हम लेजर में जाएंगे तो जर्नल का रेफरेंस मिलेगा, जब हम जर्नल पे जाएंगे लेजर का रेफरेंस मिलेगा। नाउ अजय अकाउंट तो कहाँ गया, पेज नंबर 2, तो यहाँ LF में हम 2 लिख देंगे तो पता चलेगा लेजर फोलियो यानी लेजर बुक के पेज नंबर 2 पे अजय के अकाउंट में हमने इसका इफेक्ट दे दिया है। अब हम जब 2 पे आएंगे तो बाय परचेस बाय परचेस बाय परचेस बाय पर ऐसे 20 एंट्री है, पर हमें चेक करना है कि ये परचेस वाला 10,000 वाला कौन से पेज पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जर्नल फोलियो में पेज नंबर 18। सो ये जर्नल का पेज नंबर 18। So over here students, it is a cross reference, ताकि it's just like तुम जब होमवर्क करते हो तो तुमने नोटबुक में पेज नंबर दे दिए, टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी पेज नंबर है, तो होमवर्क जो भी पेज पे करते हो वहां पे तुम टेक्स्ट बुक का पेज नंबर लिखते हो, और टेक्स्ट बुक में वो सम के सामने होमवर्क का पेज नंबर लिखते हो। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्रॉस रेफरेंस। अंडरस्टूड व्हाट इज क्रॉस रेफरेंस? समझ में आ गया? अब हमें तो ये सब ब्लैंक ही रखना है, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल हम पेज नंबर और ये सब यूज करते नहीं है। तो लेजर में आएगा जर्नल फोलियो और जर्नल में आएगा लेजर फोलियो LF। Got it all of you? Any doubts? All of you understood now? शुभम Yes, sir. गया? कैश बुक में जो LF नंबर होता है वो किस यूज का है? हम कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक, और कैश बुक से भी हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, इसके लिए कैश बुक में LF आता है, सब्सिडरी बुक्स में LF आता है। गॉट इट? यस सर। फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन जो भी है तिथि, उन सब में हमें LF का कॉलम आएगा, बट जब हम लेजर पोस्टिंग में जाएंगे तो वहां पे हम JF लिखते हैं, जर्नल फोलियो, एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी डिड subsidiary book I also told you purchase book is also known as purchase journal, sales book is also known as sales journal। अब पता चला, दिमाग में याद आया, जिन्होंने अटेंशन दिया था तब, कि subsidiary book is also called subsidiary journal। Got it? That's why we write JF। फिर वो कैश बुक से पोस्टिंग है, परचेस बुक से पोस्टिंग है, सेल्स बुक से पोस्टिंग है, पेटी कैश बुक से पोस्टिंग है, जर्नल प्रॉपर से पोस्टिंग है, या नॉर्मल जर्नल एंट्री से पोस्टिंग है। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू नाउ? यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट? चलो बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स गो टू द सम। ओके, नाउ तो फॉर्मेट इज क्लियर नाउ। यहाँ पे JF है हर जगह। ओके, सो आई विल चेंज इट व्हेनेवर आई गो टू दोज अकाउंट, बिकॉज द फॉन्ट्स की वजह से वो L दिख रहा है, पर वो L नहीं है, J है, JF है। नाउ let's go to the first entry. Now cash account, now already you have made all these accounts. Now cash account, so now what you will do is you have to search for cash account. Where is cash account? So here it is, our cash account. Cash account debit side 3,30,000. Date is not given, serial number is given. So on the debit side, फर्स्ट स्टेप इज, मैं पहले डेबिट साइड अमाउंट लिख दूंगा ताकि इसमें गलती नहीं हो। 3,30,000, डेट इज फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट इफेक्ट हमने दे दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो कैश अकाउंट, डेबिट साइड 3,30,000, 3,30,000. Is this clear? Is this clear? Okay, second effect. Now,
सेकेंड है कैपिटल अकाउंट 3,30,000. नाउ ये 3,30,000 एक हो गया. अच्छा, आई एम नॉट एबल टू यूज द साइन ओवर हियर बिकॉज इट्स अ पिक. So 3,30,000 capital account to capital account, 3,30,000 credit side. So let's look for capital account. Here is capital account, credit side 3,30,000. Date is 1. Here we write by cash. याद रखना कैपिटल में टू कैपिटल बाय कैपिटल नहीं आ सकता है, बाय कैश आएगा. ओके, सेम नेम यहाँ पे और सेम नेम यहाँ पर्टिकुलर्स में नहीं आ सकता है. तो एग्जाम में ध्यान रखना गलती ना हो जाए, बाय कैपिटल मत लिख देना. ओके, इट इज बाय कैश. और इससे अगर हमें एंट्री बनाना है तो हम बना सकते हैं. यू कैन सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड 3,30,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 3,30,000, कैश अकाउंट डेबिट साइड 3,30,000. तो हमेशा टू इफेक्ट्स देना, इक्वल एंड ऑपोजिट. जहां पे कंबाइंड है आई एक्सप्लेन हाउ टू डू कंबाइंड ट्रांजैक्शंस. अभी के लिए वी आर डूइंग ट्रांजैक्शंस विद टू इफेक्ट्स ओनली. शुड आई प्रोसीड? सबको पता चल गया? Yes, sir. Okay, now let's go to the next one. Bank account debit 2,30,000. So bank account debit side 2,30,000. Date is again 1. To what? To cash account. कैसे कैश अकाउंट दिया ही है? टू कैश अकाउंट. सो बैंक में 2,30,000 आया, रिसीप्ट साइड डेबिट साइड. कहां से आया ये 2,30,000? तो कैश डिपॉजिट हुआ. देन कैश अकाउंट, अब कैश में क्रेडिट साइड 2,30,000 1 बाय बैंक अकाउंट. अब कैश हमारे पास, ध्यान दो, कैश हमारे पास 3,30,000 था जो ओनर लेके आया और उसको बैंक में डिपॉजिट किया हमने. 2 लाख उसमें से बैंक में डिपॉजिट किया 2,30,000. इसे कहते हैं रीडिंग ऑफ लेजर अकाउंट. ये तुम्हारे पोस्ट 12 कोर्सेस में आता है कि रीडिंग ऑफ लेजर अकाउंट, यानी लेजर अकाउंट तुमने देखा कैश का, पर इससे तुमने क्या इंटरप्रेट किया? तो हमने क्या इंटरप्रेट किया कि 3,30,000 आया कैश, ओनर लेके आया, उसमें से 2,30,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किया. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड? ओके, नाउ प्लीज ध्यान देना स्टूडेंट्स. कितनी बार हम जब इसको पोस्टिंग करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमने एक इफेक्ट दे दिया पर दूसरा इफेक्ट रह गया. तो अभी मैं तो स्क्रीन पे कर रहा हूं, तुम जब यहाँ नोटबुक में कर रहे हो तो एंट्री जैसे ही पोस्टिंग हो जाए उसको टिक कर दिया करो, ताकि तुम्हें पता चले कि ये इसका पोस्टिंग हो गया, ताकि 2 टाइम्स पोस्टिंग नहीं हो या पार्शियल पोस्टिंग नहीं हो. इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वन. परचेज अकाउंट डेबिट 85,000 टू कैश अकाउंट. Purchase account debit 85,000 to cash account. So purchase account पहले ढूंढो, मिल गया हमें purchase account debit 85,000. Date. Now what is the date? 2nd. To what? To cash. To cash account. कैश अकाउंट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट में आ जाओ. कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 85,000 बाय परचेजेस. यानी क्या कि हमने 85,000 का कैश में परचेज किया. कैश गोज आउट. बट व्हाई इट इज गोइंग आउट? बिकॉज वी हैव परचेज्ड गुड्स. हो गया सबका? शुड आई वेट? नो रिस्पॉन्स? ओके, शुड आई कंटिन्यू? Yes, sir.
Okay. Yes. Now थर्ड हो गया तुम्हारा, यानी लेट्स गो टू द फोर्थ वन नाउ। जो हो गया उसको टिक करते जाओ ताकि तुम्हें पता चले कि ये हमारा टू इफेक्ट्स हो गया। नाउ फर्नीचर अकाउंट डेबिट डेट नंबर 3। ओके, हम इसको डेट 3 मानते हैं। डेट नंबर 3 फर्नीचर अकाउंट डेबिट to Ajmal account, Ajmal Furniture Mart account. So first let's locate furniture account debit 11,500. So furniture account मिल गया, debit side मिल गया 11,500. Date is 3rd. Actually it's a serial number. 1 दो बार इसके लिए था because the transaction itself had two types of transaction in it. It was a 2 transaction on 1. That's why. Now यहाँ पे to Ajmal Furniture Mart. Because of lack of space, I am writing to Ajmal FM account. 11,500. So furniture account debit side 11,500. Ajmal Furniture Mart account credit side 11,500. Date is 3rd. Buy furniture. इससे हमें पता चलेगा कि अजमल को 11,500 क्यों देना है, क्योंकि हमने उससे फर्नीचर खरीदा है। खत्म हो गया हो तो टिक कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट डन, अजमल फर्नीचर मार्ट अकाउंट क्रेडिट ऑल्सो डन। नाउ नेक्स्ट, नाउ कन्नू भाई टू बैंक, कन्नू भाई अकाउंट डेबिट 8,000. So let's locate कन्नू भाई. Where is कन्नू भाई? As you can see कि यहाँ पे ढूंढने में दिक्कत होता है because alphabetically नहीं बनाया है, but real life में it is made alphabetically and there is a index. जैसे पुराना टेलीफोन डायरेक्टरी आता था जो घर पे लोग मेंटेन करते थे, अभी तो मोबाइल फोन है तो कोई ऐसा घर पे मेंटेन जनरली नहीं करता है। और अगर तुम्हारे घर पे टेलीफोन डायरेक्टरी है तो उसमें देखना पहले दिया होगा अल्फाबेटिकली पेज नंबर एंड देन अल्फाबेटिकली नेम्स एंड द कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर रिकॉर्डेड। तो सिमिलरली लेजर में भी ऐसा ही होता है, पर यहाँ पे हम इसको हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं बिकॉज वी आर मेकिंग ओनली फ्यू लेजर अकाउंट्स। सो कन्नू भाई, सो कन्नू भाई मिल गए। कन्नू भाई अकाउंट डेबिट 8,000. So Kannu Bhai debit side 8,000. 4th. Now क्या ट्रांजैक्शन हुआ कन्नू भाई के साथ? कन्नू भाई टू बैंक, उनको पैसा दिया बैंक अकाउंट 8,000. So फर्स्ट इफेक्ट दे दिया। अब बैंक अकाउंट में आ जाओ। कन्नू भाई डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 8,000. 4th. बाय कन्नू भाई। इट मींस 2,30,000 बैलेंस था, 8,000 का हमने चेक दिया कन्नू भाई को। नाउ फिफ्थ एंट्री प्लीज ध्यान देना। नाउ ओवर हियर you can see that bank account debit 7,500, discount account debit 300, to Raju Bhai 7,800. So now what should we do over here? Same principle of posting bank account debit side 7,500. तो पहले बैंक अकाउंट में जाओ, डेबिट साइड पे 7,500. फिफ्थ, नाउ यहां पे क्या लिखेंगे हम? टू राजू भाई, यहां पे हम लिखेंगे टू राजू भाई।
So bank account, debit side 7500. Then discount account debit 300. So discount account hundo, discount account debit side 300. Again date is 5th. We write again to Raju Bhai. Now bank account debit side 7500, discount account debit side 300 and Raju Bhai account credit 7800. अब प्लीज ध्यान देना ऑन द स्क्रीन, राजू भाई अकाउंट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे ये जो 7800 है इसके टू पार्ट्स है, 7500 and 300. So here we write 7500 and we write 300. So 7500 and 300 is 7500 fifth by bank account and fifth by discount account. So यहाँ पे 7800 directly नहीं लिख सकते हैं because Raju Bhai is credited with 7800, but 7800 has two element. चेक मिला 7500 का और डिस्काउंट दिया 300 का. तो राजू भाई के लिए बाय बैंक 7500 एंड बाय डिस्काउंट 300. So if you see this once again, bank account debit 7500. So bank account debit side, let me highlight it so it becomes easy for you to understand. Bank account debit 7500. यहाँ पे राजू भाई अकाउंट में बाय बैंक 7500, तो टू इफेक्ट्स आ गया. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300 टू राजू भाई, तो राजू भाई में क्रेडिट साइड आ गया बाय डिस्काउंट. सो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. गॉट इट ऑल ऑफ यू? कंबाइंड एंट्री पता चला? तुम वो नियम पकड़ के चलना कि डेबिट है तो डेबिट साइड उतना अमाउंट आना चाहिए और क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड उतना अमाउंट आना चाहिए. दैट्स द रूल. इसमें गलती मत करना. समझ में आया? ओके. नाउ ये हो गया, टिक करेंगे इसको. बैंक हो गया, डिस्काउंट हो गया, राजू भाई हो गया. नाउ कैश टू सेल्स. Cash account debit 15,000. So let's go to cash account debit side 15,000. To sales account, cash account debit 15,000 to sales account और sales account में credit side 15,000 by cash account. Done. Next, Ramesh Bhai account debit 75,000. So let's locate Ramesh Bhai. Ramesh Bhai मिल गए 75,000 to sales account. तुम जर्नल एंट्री सामने ही रखना तो इजी हो जाएगा पोस्टिंग करना. Because of my limitation of the screen, okay, I'm not able to keep everything on the same screen. So still, once again, Ramesh Bhai account debit 75,000, उसके नीचे का एंट्री तो पता ही है to sale 75,000. तो रमेश भाई अकाउंट डेबिट साइड 75,000 टू सेल्स. तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड 75,000. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बाय रमेश भाई अकाउंट. So you can see over here both the accounts have equal and opposite effect. अगर तुम एक इफेक्ट देना भूल गए तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस जो आज हम करने वाले इसको बैलेंस करने के बाद वो टैली होगा नहीं. इट मीन्स यू हैव मेड सम मिस्टेक.
Okay, then Ramesh bhai to sales हो गया. Salary to cash 6200. So salary account debit. Let's find out salary account debit 6200. Transaction number 8 to cash account or cash account. Credit 6200 by salary account. You can see cash account is very similar to cash book and bank account is also very similar to cash book bank column. But here we are not making a cash book, so we are doing everything from ledger, from journal entries. Everything is done from journal entries, and that is why we are making bank and cash account also. So this is also done. Total is telling you don't have to do anything for this totals. Okay, this should just be equal. Great. Now this is done. So we have done the posting of all the entries what we have. But posting is not enough. We also have to find the balances. So all of you please take calculators with you. Please take calculators with you. Let's go and do the balancing. Now take calculators with you. Okay. Now over here, first of all, you will have to see which side is more. So I can very well see over here that debit side is more. So I'll write the amount 2,37,500. So 2,37,500 you write on the debit side. Same, you write on the credit side. Why? Because debit side is more. Now, while you are doing in your notebook, so what you do is always keep at least one clear line blank and then do this total. Okay? एक लाइन तो कम से कम ब्लैंक रखना बिकॉज उसमें बैलेंसेस लिखना पड़ेगा. ओके तो ऐसा नहीं कि सर एक लाइन हमने इधर ब्लैंक करके टोटल कर दिया और एक लाइन हमने इधर ब्लैंक करके टोटल कर दिया. ये आमने सामने ही होना चाहिए. This should be in the same line. ये ऐसे ऊपर नीचे होना चाहिए नहीं. They should be in the same line. Dear students, please be careful. अभी इसका होमवर्क तुम्हें मुझे ही ग्रुप में सबमिट करना है तो मैं चेक कर ही लूंगा, बट ये प्लीज ध्यान रखना. ओके नाउ यानी ये 2375 एक ने इधर लिखा एक ने इधर लिखा तो नहीं चलेगा. It has to be in the straight line and always one or two lines should be blank over here. Now, यहाँ पे भी हमने टोटल लिखा 237500. So कैलसी पे लिख लो, माइनस कर दो 8000. So what you get a balance of 229500. This is 9 or 8 is the last date. So let me keep it 8. Or last date of the month if a monthly data is given, 8 by balance carried forward. This balance carried forward will become on 9 to balance brought forward 229500. Now ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूं. तुम क्या करना, ये अमाउंट पे सर्कल बना देना पेंसिल से. ओके सो दैट यू कम टू नो. सो लेट मी हाईलाइट दिस. और ये बैलेंस इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ. कैरिड फॉरवर्ड और बॉट फॉरवर्ड, इस पे तुम एक सर्कल बना लो. ओके सो दैट यू नो कि ये डेबिट साइड ये बैलेंस है 229,500. Okay, don't get confused. I'll show you. I have a marker pen with me, not to worry.
ये जो आया ना, इसके ऊपर ऐसा सर्कल बना ताकि तुम्हें पता चले। ये पेंसिल से करना अभी प्रैक्टिस के लिए, ओके, एग्जाम में ये सब नहीं करना है तुम्हें, ऐसा सर्कल नहीं बनाना, नहीं तो सर्कल ना मिल जाए। तो यहाँ पे सिर्फ अभी के लिए, सो दैट यू नो कि डेबिट साइड उसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है फॉर द नेक्स्ट डेट। ओके, नाउ let's go to the next account. Next account is cash account. Again, cash account mein you have to see which side is more. So debit side seems more. So I'll do the total. 3,30,000 plus 15 is 3,45,000. Same we write on the credit side. और उसमें से ये सब माइनस करना है। So 345 minus 2,30,000. Okay, I'll do it over here so that you all can see. 345 minus 2,30,000 minus 85,000 minus 6,200. So it comes to 23,800 by balance carried forward. Now by balance carried forward, balancing is not over. Sorry, this is date 8, date 9 to balance bought forward. ये डेट का क्लोजिंग, 8 का, 9 का ओपनिंग, 23,800. I'll highlight it. You make a circle over here. Or let me see. Now, capital account. As you can see, in capital account, there is effect only on the credit side. So directly total 3,30,000. Same total on the debit side. और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस 3,30,000 से ये हो जाएगा 8 को टू बैलेंस carried forward. To balance carried forward, ये हो जाएगा 9 को by balance bought forward. Now purchases, again 85,000, debit side is more. We write the same on the credit side. 85,000, 8 by balance carried forward. This will become 9 को to balance bought forward. Furniture account, again debit side 11,500, 11,500, is the balance, nothing on the credit side. By balance carried forward 8. This will become on 9 to balance bought forward. If dates were given, we would have used the dates. Next, Ajmal Furniture account 11,000. Hello, sir. Yeah.
बोलो मानो. सर करून द्या थोडं मिस. Okay. Okay, now Ajmal Furniture Mart credit side is more. So we write the same thing over here. 11,500 double underline always. Okay. Now here 11,500 8 to balance carried forward. By balance. 9th નહીં સર આમાં લખવાનું So sorry. 9th ડેટ આવશે ને Ninth data. Okay. Ninth by balance bought forward 11,500. Now Kannu Bhai. Now you can see Kannu Bhai 8,000 double underline 8,000 on the credit side double underline. There's no amount over here, so 8,000 becomes our balance. So 8 by balance carried forward. Balancing is not complete. 9 to balance bought forward. You remember you used to start with to balance bought forward in cash book. So it means previous month का closing ये month का opening. वैसे ही 8th का closing 9th का opening. Then discount 300 again 300. ये सब में तुम्हें कैलसी का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो. इसके ऊपर 300 8 by balance carried forward. And 9 to balance bought forward. Now Raju Bhai, again credit side is more. 7,500 plus 300 is 7,800. इसके ऊपर 7,800 to balance carried forward. સર બાય બેલેન્સ કેરીડ ફોરવર્ડ Oh, here it will be to balance carried forward, and here it will be by balance brought forward. Debit side we will write to, and credit side we will write by. સોરી Okay, no worries. No 7,800. Now sales account, directly credit side is more, always. सेल्स में क्रेडिट साइड ही आएगा, डेबिट साइड आ ही नहीं सकता. सेल्स कभी भी हमने डेबिट नहीं किया एक्सेप्ट इफ इट्स अ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. ओके, बिकॉज गुड्स गोज आउट. 90,000 इसके ऊपर 90,000 उसका बैलेंस टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड. by balance brought forward. Ramesh Bhai, by balance carried forward.
75,000. And then salary account. 6200 double underline 6200 double underline इसके ऊपर balance by balance carried forward. To balance brought forward. नाउ एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में ओके कि सर अगर कहीं पे डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया तो क्या करेंगे? ऐसा भी हो सकता है ना कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सेम है, तो उसको हम कहते हैं अकाउंट स्क्वायर्ड अप. अकाउंट स्क्वायर्ड अप यानी ना कुछ देना है ना कुछ लेना है. इट इज अ जीरो बैलेंस. इज दिस क्लियर? तो वहां पे कोई बैलेंस कंसेप्ट आएगा ही नहीं, बिकॉज कैश जितना आया उतना ही कैश चला गया, तो हाथ में कुछ रहा ही नहीं. तो ऐसा भी होगा. ओके ऐसे भी तुम देखोगे सम जहां पे अकाउंट बन गया बट बैलेंस नहीं आ रहा है, तो उसमें हम क्या करते, अकाउंट के नीचे जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स. अकाउंट्स के नीचे जहां पे भी स्क्वायर्ड अप हो गया, से फॉर एग्जांपल let's say this is a Ajay account. So debit side we have recorded two sales 10,000. Okay, let me zoom. And credit side we recorded by cash 10,000. This is just an example. Okay, the dates I have not written. Now over here when you do the total, both the side it is 10,000 10,000. So यहाँ पे कोई भी balance है नहीं. So in that case what we do is over here below the account we do like this. It means what? There is no balance, account is squared up. हिसाब चुकता. Got it? अंडरस्टूड? ऐसा लिखना नहीं है स्क्वायर्ड अप, सिर्फ ऐसा दो लाइन करते हैं ताकि हमें पता चले कि अब इसका ये अकाउंट का कोई भी हिसाब बाकी है नहीं. समझ में आया? यस सर. जब मेरा वीडियो लेक्चर में जो सम किया है मैंने, उसमें ऐसा मैंने कंसेप्ट लिया है. ओके तो व्हेन यू डू दैट एज योर होमवर्क, तो दिस कंसेप्ट विल कम एंड यू विल बी थरो विद दिस. ओके नाउ ये सब तो हमारा हो गया, बट यहाँ पे our journey does not end. Now in the textbook illustration 1 it is only posting, balancing is not there. और हमें तो बैलेंस भी करना है. अब लेजर तो बैलेंस कर दिया, पर हमारे पास अभी कोई रेडी स्टेटमेंट नहीं है जहां पे हमें सबके बैलेंसेस पता चले. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें सेल्स का बैलेंस फाइंड करना है तो तुम्हें पहले जाना पड़ेगा ढूंढते ढूंढते कि सेल्स अकाउंट किधर आया किधर आया किधर आया, एंड फिर देखना पड़ेगा कि उसका बैलेंस कितना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस. नाउ व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? अ ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट. इट्स अ समरी. यू कैन सी समरी है यहाँ पे, नेम ऑफ अकाउंट दिया है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का अमाउंट यहाँ लिखना है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा. तो ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ बैलेंसेस ऑफ व्हाट? ऑफ ऑल दीज लेजर अकाउंट्स. अंडरस्टूड दिस? तो प्लीज मेक अराउंड 12 to 15 lines format like this. You will have serial number. Now you don't have date. Trial balance of Sri Katra as on a particular date. Say let's say on 8. Okay, 8 say something. So it's on a particular date. So you don't have to have a date column. It is a serial number over here, name of account, उसका डेबिट बैलेंस या उसका क्रेडिट बैलेंस. नाउ सर अगर किसी का बैलेंस ही नहीं है तो वो ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं.
तो हमें उसको लिखना ही नहीं है। तो ऐसा 12 लाइंस का फॉर्मेट बना लो प्लीज। So now first of all, let's start with the first ledger account, that is bank account. Now very important thing you should know students, ध्यान दो please, extremely important. Now ये बैंक अकाउंट है, उसका बैलेंस यू कैन सी 2,29,500 हमने यहाँ पे भी लिखा है क्रेडिट साइड पे और डेबिट साइड पे भी लिखा है। तो ये हमारा कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट। कैसे पता चला? सर जो फाइनल हुआ ना वो। नो सी, इसको ऐसे याद रखना है तुम्हें, ध्यान दो प्लीज। अगर कोई भी अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा हो देन क्रेडिट साइड, इट इज अ डेबिट बैलेंस एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी कि ये यहां पे आ रहा है टू बैलेंस बॉट फॉरवर्ड ऑन द डेबिट साइड। ऑल्दो बैलेंसिंग करने के लिए हम लिखते हैं ऑन द क्रेडिट साइड, बट debit side is more, so it's a debit balance. Okay, tell me, ये अजमल फर्नीचर मार्ट जो तुम्हारे स्क्रीन पे है उसका बैलेंस क्या है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। Credit. क्रेडिट बैलेंस क्यों? बिकॉज योर क्रेडिट साइड वॉज मोर देन योर डेबिट साइड। इज दिस क्लियर? यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द बैलेंसेस? Yes, sir. ओके, नाउ यहाँ पे डेबिट बैलेंस है और इसके लिए मैंने तुम्हें सर्कल करने को बोला था ताकि यू नो कि ये वाला अमाउंट जाएगा ट्रायल बैलेंस में। सो फर्स्ट ट्रायल बैलेंस में सीरियल नंबर 1 बैंक अकाउंट, डेबिट साइड 2,29,500। ओके, सेकेंड कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का बैलेंस 23,800 कौन सी साइड आएगा? डेबिट। डेबिट। Debit. वेरी 23,500 डेबिट साइड। चलो नेक्स्ट, थर्ड कैपिटल अकाउंट 3,30,000 कौन सी साइड? 23,800 sir. सॉरी 23,800. 800 also. 23,800। ओके ग्रेट, सॉरी। नाउ कैपिटल कौन सी साइड उसका बैलेंस आएगा? कैपिटल का Credit side. क्रेडिट साइड। Credit side. अकाउंट 3,30,000। और ओके, कैपिटल हो गया फोर्थ। तो म्यूट कर दो ये नॉइज जहां से भी आ रहा है, इसको म्यूट कर दो। ओके, नाउ परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट 85,000। नोटबुक में देख के मुझे बताओ कौन सी साइड आएगा? Debit. डेबिट साइड। Debit side. 85,000। ओके, फिफ्थ then furniture account, furniture account 11,500 कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड। सिक्स्थ, अजमल फर्नीचर मार्ट अकाउंट क्रेडिट साइड 11,500। तो सर्कल करके ही रखना तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो सर्कल है, जो साइड पे सर्कल है वो साइड पे बैलेंस लिखना है इन ट्रायल बैलेंस 11,500। देन कन्नू भाई 8,000 डेबिट बैलेंस, कन्नू भाई 8,000 डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट 300 डेबिट बैलेंस,
डिस्काउंट के बदले अलाउंस अकाउंट भी यूज कर सकते हो. ओके. राजू भाई, क्रेडिट साइड 7800. Sales, credit side 90,000. Then Ramesh bhai 75,000. And the salary 6,200. So now double underline and do the total. $4,39,300. Debit and credit. You have to write the total. हो गया टैली सबका? Yes, sir. Now, Yes. ध्यान दो. See, ट्रायल बैलेंस टैली होना इंपॉर्टेंट है. अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गए, it means arithmetically you are correct. It means you have given everywhere proper two effects, both equal, both opposite. यानी your debit side is equal to credit side. यानी पोस्टिंग में कोई arithmetic mistake नहीं है. जैसे कि डेबिट साइड लिखा पर क्रेडिट साइड नहीं लिखा तो ये टैली नहीं होगा. डेबिट साइड लिखा पर क्रेडिट साइड 2 बार लिखा तो भी ये टैली नहीं होगा. डेबिट साइड के बदले क्रेडिट, क्रेडिट के बदले डेबिट, डेबिट डेबिट या क्रेडिट क्रेडिट, या फिर बैलेंसिंग में गलती हो गया, टोटलिंग करके बैलेंसिंग में गलती हो गया, या फिर यहाँ पे कोई अमाउंट लिखने में गलती हो गया, तो ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली होगा नहीं. ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, इट मींस कहीं पे कोई गलती हुआ है. तो ध्यान रखना. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, जर्नल एंट्री के बाद जब पोस्टिंग कर लो, पोस्टिंग चेक कर लो एक बार, फिर उसका बैलेंसिंग करो. बैलेंसिंग करने के बाद फिर ट्रायल बैलेंस पे आओ. इज दिस क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट एनीवन? No. सो No, sir. तुम्हारा पहला सम लेजर पोस्टिंग का और पहला लाइफ का ट्रायल बैलेंस टैली हो गया. एंड आई होप हर एक ट्रायल बैलेंस टैली होते रहे. गॉट इट? नाउ जर्नल प्रॉपर का एक कंसेप्ट था जो लास्ट सम में हमने सीखा था. तो मैंने कहा था कि ये ट्रायल बैलेंस से अकाउंट्स को ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस या पीएनएल में रखना है. याद है सबको? तो अब तुम देख सकते हो कि ट्रायल बैलेंस में सब अकाउंट दिए हैं और यहां से हमें इन सब को जब हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे, सो वी विल ट्रांसफर देम आइदर टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और टू बैलेंस शीट. बट इफ वी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सब अकाउंट 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 है. तो इसके लिए वी विल हैव टू पास अ जर्नल एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, व्हिच वी डिड इन जर्नल प्रॉपर. गॉट इट? Is this clear? Okay. Now, homework में तुम्हें क्या करना है? As we have already done this exercise sum as homework, तो illustration जो है उसमें entries already दिया है. You don't have to write the entries. You have to do the ledger posting. You have to make the trial balance. And you have to send me those pics on our group, not individually, on the group. Is this clear? Because individually बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इतने सारे मैसेज आते हैं कि लोकेट करना डिफिकल्ट हो जाता है. इसके साथ साथ अभी तो मैंने लाइव सेशन लिया,
तो तुमने सुना समझा बहुत बढ़िया, पर तुम मेरा रिकॉर्डेड सेशन भी देखना, उसमें इतने सारे लेजर अकाउंट्स नहीं है, मैंने एंट्रीज लिखा है और उससे पोस्टिंग किया है, तो वो सम भी तुम्हें प्रैक्टिस में करना है। तो पहले मेरा लेक्चर देख लो, वो सम कर लो, उसके बाद इलस्ट्रेशन 1 होमवर्क में कर लो। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ठीक है, बट सिंसियरली करना प्लीज। और इलस्ट्रेशन में बैलेंसिंग नहीं है, तुम्हें बैलेंसिंग भी करना है और ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। गॉट इट? तो पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, पोस्टिंग प्लस टीबी। ओके, सो